Hello friends, I am Advocate Arun Kumar Singh. Welcome you all in AKS Study channel. Friends, please like, subscribe and share my channel so that you can get all the notification of my latest uploaded video on the site. Friends, in the Constitution series, we will today study about the salient feature of Indian Constitution. So first point is Indian Constitution is lengthiest constitution of the world. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है जो विश्व का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों। ओनली 7 पेज इसमें है। और ब्रिटेन है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ परंपरा पर आधारित है, कस्टम पर आधारित है और लॉ पे आधारित है। रूल रेगुलेशन वहाँ पे जो एक्ट है, इनेक्टमेंट है, उस पर आधारित है। सेकेंड इज इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, इट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम वन सोर्स। देयर आर डिफरेंट सोर्स एंड फ्रॉम देम इट इज मीन्स कॉपीड और modified. Third is it provides parliamentary form of government. Indian Constitution provide India to form parliamentary form of government. Means there will be parliament and from members of the parliament will be selected in the government. Next 4 point is it provide integrated and independent judiciary. It has integrated judiciary. What do you mean by integrated judiciary? Integrated judiciary means there will be only one judiciary for central government, a state government or union territory for all, and means trial will take place at a single place in the single court as per the jurisdictional area. Second is independent judiciary. Judiciary is separate from executive, separate from legislative. This is the meaning of independent judiciary. There will not be any interference of legislative or executive in the affairs of judiciary. Fifth point is it provide fundamental rights. Part 3. Indian Constitution Part 3 provides the fundamental right, friends, to all its citizens, as well as some fundamental rights are also provided to persons. Whoever persons may be foreigner and he come to India to visit or for a tour, then he will be also have some fundamental rights. What are the fundamental rights provided for the Indian citizen? Then there will be written word citizen. What are the right provided to Indian citizen as well as foreigners and all except alien enemy. Alien enemy जिसके साथ वार छिड़ चुका है हमारा, तो उसके देश के नागरिक को एलियन एनिमी बोलेंगे, तो उसको कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है। तो जो यदि सिटीजन को भी है फंडामेंटल राइट और फॉरेनर को भी है, तो वहाँ पर वर्ड लिखाएगा पर्सन। Now next 6th point, my friend, it provides DPSP. It is a guideline of constitution. भारतीय संविधान जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देता है, जिसमें कि गाइडलाइन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। 7 पॉइंट इज माय फ्रेंड फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी भी दिया गया है कि भारत के नागरिक का क्या ड्यूटी होगा। So there are 11 duties provided in Indian Constitution. So next point is, my friend, universal adult franchise means 18 साल के जितने भी भारत के नागरिक हैं, irrespective of gender, caste, creed, race, religion, poor or rich, doesn't matter. They all are authorized, entitled to vote, to elect the member of parliament, member of legislative assembly or member of panchayat or member of municipality. Now next is, friend, 9 point, it provides single citizenship. Now it is true
sentence earlier it was not true because it doesn't provide earlier single citizenship. Jammu Kashmir having separate citizens as well as they were also citizen of India. Now it is true because 370 article is abrogated. So on the Union territory Ladakh and Jammu Kashmir, two Union territories declared, Jammu Kashmir having also with legislative assembly. So it provides single citizenship for whole India now, not except Jammu Kashmir. Now for whole India. Now next 10 point, my friend, 10 and last point. It provides emergency provisions. There are 3 emergency provisions provided in Indian Constitution, my friend. One is Article 352. 352 means national emergency. In case of external aggression, first. Second, in case of internal armed rebellion. In case of internal armed rebellion, then there will be emergency may be declared. Article 352. Who declare emergency दोस्तों? तो President declare emergency. Article 352. Now second type of emergency is a state emergency. Article 356. If there is constitutional machinery failure in any state, means a state government cannot run as per the constitution, as per the law, as per the provisions of the constitution mainly, then president on the recommendation of governor may impose president rule. Means Article 356 may be invoked. Now third type of emergency is, my friend, Article 360. 360 never has been invoked in India till now. So 360 is financial emergency. Means if government or nation is in financial crunch, or any part of nation, means any state is in the financial crunch, then government may declare that part or as well as whole of the country financial emergency. Means president may invoke Article 360 so that more and more taxes may be collected to increase the revenue. Now friend, we may see the first point in detail. First point is lengthiest written constitution. So Dr. B.R. Ambedkar is architect of Indian Constitution. Constitution are classified into 2 classes. One, written constitution such as of America, India, etc. Second is unwritten constitution such as Britain. Britain doesn't have written constitution. Next point दोस्तों, Constitution of India is lengthiest of all written constitution of the world. भारत का संविधान जो है दोस्तों, जिन्होंने ऐसा माना जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने लिखा है, तो ये विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड. सेवरल फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स करेंट साइज. इसके सबसे बड़ा होने का कुछ कारण है, कुछ फैक्टर हैं, उसको देखते हैं दोस्तों. एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर है, वास्टनेस ऑफ द कंट्री, देश बहुत बड़ा है इसलिए भी है. दूसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट. सेंटर और स्टेट के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है. कुछ राज्यों में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है दोस्तों, स्टेट के लिए अलग होता. कुछ देशों में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के लिए अलग होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है. लेकिन यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. हिस्टोरिकल फैक्टर तीसरा है कि हिस्टोरिकल फैक्टर भी भारत का संविधान बड़ा होने का एक कारण है. द मैसिव इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. दोस्तों 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पर माइग्रेट कर दिया गया है, यहाँ पर कॉपी कर दिया गया है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट था. तो ये भी कारण एक है, हिस्टोरिकल कारण भी एक है. मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को यहाँ कॉपी करना भी एक कारण है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है वर्ल्ड का. नेक्स्ट और चौथा और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, डोमिनेंस ऑफ लीगल लिमिनरीज एडवोकेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
मीन्स लॉ एक्सपर्ट एज वेल एज यू कैन से एडवोकेट। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और उसका रिप्रेजेंटेटिव पूरे देश से आते हैं। उस समय देश में जैसा प्रथा चल रहा हो, यदि इलेक्शन हो रहा हो संभव तो इलेक्शन कराया जाएगा, यदि इलेक्शन संभव नहीं हो तो छोटे पैमाने पर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से लोग, कुछ लोग जो प्रोमिनेंट लीडर हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग लेते हैं, वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, और इलेक्शन संभव है तो इलेक्शन करा करके आएंगे, और वो संविधान सभा का निर्माण होगा। उसके बाद एक छोटा सा उसमें से टीम चुना जाएगा जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी, फिर उसमें से एक चेयरमैन चुना जाएगा जो हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी होंगे, जिसका B.R. अम्बेडकर थे। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने संविधान को लिखा है, वो ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट मीन्स दोस्तों लिखना, लेकिन रफ, फेयर नहीं, फेयर बाद में किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को दिखा करके। उसके पहले प्रेसिडेंट को दिया जाएगा जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो वो यदि ओके करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक बहुमत से पास करेगा ठीक है सही है, तो उसको फेयर कर दिया जाएगा, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उससे पहले वो ड्राफ्ट ही रहेगा। सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि हमने पहले देख चुका, कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ये भी एक भारतीय संविधान का एक स्पेशल फीचर है दोस्तों कि बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा करके के इसको लिखा गया, जबकि अमेरिका का संविधान ऐसा नहीं है और अन्य किसी भी देश का संविधान ऐसा नहीं है कि इतना सारे कंट्रीज के संविधान से कॉपी किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कॉपी किया जाए और अलग अलग देशों के लॉ कानून को पढ़ करके इसमें अपना समाहित किया जाए। तो ऐसा सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलता है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज में पहला पॉइंट है कि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो लिखा हुआ भाग है, जो ढांचा कैसा होना चाहिए देश का, और देश में एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल ढांचा कैसा होना, लेजिस्लेटिव ढांचा कैसा होना, जुडिशियरी कैसा होना चाहिए और एग्जीक्यूटिव कैसा होना चाहिए, इसमें मीन्स कौन कौन से लोग होंगे एग्जीक्यूटिव में, वो कहाँ से चुने जाएंगे, तो ये है एक तरह से स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सभी लिया गया है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जो कि ब्रिटिश लोगों ने पारित किया था। दूसरा है दोस्तों, इसी पॉइंट में आगे है कि द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी derived their inspiration from USA and Irish constitution respectively। बोलते हैं दोस्तों कि फंडामेंटल राइट को लिया गया है यूएसए से और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है आयरलैंड से, इसलिए रिस्पेक्टिवली वर्ड लिया गया है कि फंडामेंटल राइट एंड डीएसपी आर टेकन फ्रॉम यूएसए एंड आयरिश रिस्पेक्टिवली। नाउ इसी में आगे है दोस्तों कि द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ड्रॉन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया दोस्तों, और रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव भी यह ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया। मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसमें दो पार्टी है दोस्तों, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, और उसमें हाउस ऑफ कॉमन है और हाउस ऑफ लॉर्ड है। तो यहाँ हाउस ऑफ कॉमन के जगह पर हो गया लोकसभा, और हाउस ऑफ कॉमन के जगह पर हो गया हाउस ऑफ कॉमन की जगह पर लोकसभा, और हाउस ऑफ लॉर्ड की जगह पर हो गया दोस्तों राज्यसभा। तो और पार्लियामेंट के मेंबर ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, स्टेट ऑफ मिनिस्टर बनते हैं, डिप्टी मिनिस्टर बनते हैं, यू कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बनते हैं वो पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा के ही मेंबर बनते हैं। लेकिन बाहर से यदि बनना चाहे तो वो भी बन सकते हैं, यदि कैबिनेट चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है, प्राइम मिनिस्टर चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद ही हैज टू बी मेंबर ऑफ ईदर मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों
कि फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 है दोस्तों, कि एनी फंडामेंटल राइट विच इज इन मीन्स कंट्रेडिक्शन विद द पार्ट 3, मीन्स फंडामेंटल राइट कहीं पर कंट्रेडिक्शन में हो तो दे विल बी वाइड। ये है जुडिशियल रिव्यू, मीन्स जुडिशियल रिव्यू का पावर यहीं से मिला है, यही है जुडिशियल रिव्यू। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, ये भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लिए हैं। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज गेटिंग पेमेंट फॉर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा दोस्तों, नॉट एज ए वाइस प्रेसिडेंट। नाउ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या क्या लिए हैं दोस्तों, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा आयरलैंड से लिए हैं। कुछ मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा का दोस्तों, और कितने होते हैं तो 12, 238 होते हैं इलेक्टेड और 12 होते हैं नॉमिनेटेड, और लोकसभा के 350 होते हैं दोस्तों इलेक्टेड और 2 होते हैं नॉमिनेटेड। तो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा का हम कहाँ से कॉपी किए हैं दोस्तों, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से कॉपी किए हैं दोस्तों, तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड इज द कंट्री ओनली नाइबर ऑफ यूके, यूके के तो नाइबर बहुत थे, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड छोड़ के बाकी जो है वो सभी नाइबर ही थे, लेकिन सबको इन्होंने अपने में मिला लिया। इसका इतिहास आप पढ़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों। तो आयरलैंड में भी नॉर्दर्न पार्ट को मिला पाए और साउदर्न पार्ट को नहीं मिला पाए, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट रहेगा। इसको आप देख सकते हैं, ब्रेव हार्ट एक फिल्म है दोस्तों, उसमें देख सकते हैं इसकी कहानी। नाउ दोस्तों कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को से क्या लिया गया है, तो एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सॉट बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑन एनी लीगल मैटर ही कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। रिसीजुअल पावर ऑफ सेंटर, रिसीजुअल पावर सेंटर का होगा न कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये भी लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज रेसिजुअरी पावर माय फ्रेंड, तो रेसिजुअरी पावर होता है कि लेफ्ट ओवर पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है तो वो किसके पास रहेगा, उसको एक्सरसाइज करने की जरूरत आ गई। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है दोस्तों वो है रेसिजुअरी पावर, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जैसे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तब तो उसके अनुसार डिवाइड हो जाएगा पावर। लेकिन जहाँ नहीं लिखा है, किसी बात पे साइलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, देन दैट पावर विल बी एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यही है दोस्तों रेसिजुअरी पावर, तो वो सेंटर के पास होगा। बाकी अपना स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, उसके अनुसार अपना अपना लोग पावर का इस्तेमाल करके उस पर कानून इनेक्ट करेंगे, एक्ट बनाएंगे। रेसिजुअरी लिस्ट पावर वेस्ट विद द पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसी कारण सेंटर स्ट्रॉन्ग है स्टेट से। अब देखते हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट से। और कंकरेंट लिस्ट एक होता है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट भी एक्ट बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्ट बना सकता है, तो इसको लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से 2 चीज़ लिया गया है, एक तो ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट और एक कंकरेंट लिस्ट। ज्वाइंट सीटिंग कब बुलाया जाता है दोस्तों, जब किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में विरोधाभास हो जाए, लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से पास ही नहीं हो रहा है, तो ज्वाइंट सेशन उस केस में बुलाया जा सकता है। और ज्वाइंट सेशन में जिसका यदि बहुमत से पास हो गया बिल तो पास माना जाएगा। ये है दोस्तों, ये पावर किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति, एंड राष्ट्रपति विल वर्क ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब इनडायरेक्ट रूप से ये पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। अब देखते हैं दोस्तों कि फ्रांस से हमने क्या लिया। रिपब्लिक जो है प्रेसिडेंट रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, गवर्नर रहेगा, राज्यसभा रहा। रिपब्लिक मीन्स दोस्तों जो मीन्स सेकंड टाइम पब्लिक, और डेमोक्रेसी में क्या है दोस्तों, लोकसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्राइम मिनिस्टर मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर है, ये सब डेमोक्रेसी है। लेकिन रिपब्लिक है
प्रेसिडेंट जो इनडायरेक्टली हमारे द्वारा चुने जाते हैं। हम पहले चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, वो उनको चुनते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। और गवर्नर भी वैसे इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, नॉमिनेटेड बाय होते हैं प्रेसिडेंट। और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होता है उसके मेंबर भी डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं। तो ये सब रिपब्लिक का एक एग्जाम्पल है दोस्तों। तो लिया गया फ्रांस से। दूसरा है लिबर्टी। लिबर्टी जो वर्ड है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी दिया गया है, लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये सब लिया गया है राइट टू लिबर्टी, ये लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये सब इक्वलिटी जो वर्ड लिया गया है या वो फंडामेंटल राइट में जो है इक्वलिटी है वो लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद है दोस्तों फर्टर्निटी। फर्टर्निटी मीन्स भाईचारा, लिया गया प्रेम्बल में लिखा हुआ है रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, तो ये सभी लिया गया है दोस्तों फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए, द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगा इमरजेंसी में इन केस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 352 you will or it means all the citizen of India will have no fundamental right, but याद रखें दोस्तों two fundamental right, article 20 and article 21 never suspended. Then my friend article 20 and 21 never suspended. Then what is article 20 and 21? Then we have to see why these two articles never suspended, because if you suspend these two articles then life will be at risk, life will be in danger. So first is article 20 means protection from conviction. If you don't have protection for conviction then you will be convicted and hanged by and given capital punishment, then your life will be in danger. Second is 21, article 21 is protection of life and liberty. So liberty doesn't matter here, main point is life. If your life is, you can't protect your life, you don't have right to protect your life, then your life is in danger. So these two fundamental articles are never suspended, except these two. All your fundamental right will be suspended also during invocation or imposition of emergency. 352 article 352. Now जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया दोस्तों, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब अपना डिसीजन कैपिटल पनिशमेंट का दे सकते हैं और उन्हीं के द्वारा एक प्रोसीजर है उसके द्वारा उनको हैंग किया जाएगा। और नाम पब्लिक इवन की पुलिस भी किसी के लाइफ को नहीं ले सकता है। नाउ दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों हमने अभी तक देखा कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद हमने देखा कि इट ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, किस किस कंट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, कहाँ कहाँ से ये कॉपी किया गया है। उसके बाद अभी देखेंगे कि इसका एक सैलेंट फीचर है दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी भारत के नागरिक पार्लियामेंट में जा सकता है और वह मिनिस्टर बन सकता है, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हो सकता है। तो यह एक स्पेशल फीचर है। तीसरा पॉइंट पे इसको हम देखते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट इन यूएसए इज नोन एज कांग्रेस। यूएसए का पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यूके पार्लियामेंट इज सिचुएटेड एट वेस्टमिनिस्टर। वेस्टमिनिस्टर एक जगह है दोस्तों लंदन में, वहाँ पर यूके का पार्लियामेंट है। एक है एक्स्ट्रा नॉलेज है। The Constitution of India has opted for British parliamentary system of government rather than USA presidential form of government. USA में क्या है दोस्तों presidential form of government है, और ब्रिटेन में क्या है दोस्तों, ब्रिटेन में parliamentary form of government है। और पार्लियामेंट से
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुने जाएंगे हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो देश पे रूल करेंगे। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट चुने जाते हैं दोस्तों, उनको पार्लियामेंट से सेपरेट माना जाता है। ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इधर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और कांग्रेस, देर आर सीनेट, देर आर टू मीन्स पार्लियामेंट, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो किसी का मेंबर नहीं होते प्रेसिडेंट। जैसे अभी प्रेसिडेंट अमेरिका के कौन है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे बैरक ओबामा। तो दोस्तों पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया हैड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट rather than USA presidential form of government. That's why parliament system is also known as Westminster model of government. इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी माना जाता है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को। और कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाए क्योंकि कैबिनेट बोलते हैं किसको? जो मिनिस्टर होते हैं उनको कैबिनेट, उनको सारे को ग्रुप को मिलाकर के कैबिनेट बोलते हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लस डिप्टी मिनिस्टर, इस सभी को मिलाकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं दोस्तों। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। स्पेशल फीचर क्या है दोस्तों? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का भी स्पेशल फीचर है, वो है एक प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इसमें नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि डिज्यूरो होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, और एक रियल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं जो कि डिफैक्टो होते हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यू कैन से ऑल्सो। लेकिन हेड यदि है नॉमिनल हेड तो प्रेसिडेंट, और नॉमिनल रियल हेड तो प्राइम मिनिस्टर आएगा। सेकंड है दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, यदि नहीं है तो 6 महीना में उनको बनना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। यदि स्टेट गवर्नमेंट है तो चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर होंगे, हेड होंगे। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। लोकसभा यदि उनको बोले कि आज सभी लोग रिजाइन कर दो, आप लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो उनको हैज टू रिजाइन नाउ एंड एट दिस मोमेंट ओनली, अगले मोमेंट नहीं, उनको उसी समय से रिजाइन करना है, और नहीं तो मीन्स उनको डिसमिस भी किया जा सकता है कि माइनॉरिटी आ गया है। उसके बाद है दोस्तों पीएम रिजाइंस द गवर्नमेंट फॉल्स। यदि प्राइम मिनिस्टर एक रिजाइन कर दे तो गवर्नमेंट फॉल कर जाती है। मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल मीन्स दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ऐसे बोला जाता है दोस्तों कि मिनिस्टर, इंडिविजुअल मिनिस्टर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर। एक प्राइम मिनिस्टर उनसे रिजाइनेशन मांग सकते हैं, उनको डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन यदि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि पूरा गवर्नमेंट ही गिरना है तो वो लोकसभा ही गिरा सकता है दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि इस सैलेंट फीचर में हमने चौथा पॉइंट देखा है दोस्तों कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो इसमें पूरे इंडिया के लिए एक ही जुडिशियरी होता है दोस्तों, एक ही या लोअर कोर्ट होगा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कंकरेंट लिस्ट का हो, सेंट्रल लिस्ट का हो, स्टेट लिस्ट का हो, कोई भी मैटर हो वो एक ही कोर्ट में जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का केस भी एक कोर्ट में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का केस भी एक ही कोर्ट में जाएगा, एक ही जज होगा। इसके लिए अलग से जज नहीं, अलग से कोर्ट नहीं, अलग से सेशन कोर्ट या अलग से लोअर कोर्ट या अलग से हाई कोर्ट, अलग से सुप्रीम कोर्ट नहीं। पूरे देश के लिए, सभी गवर्नमेंट के लिए एक ही कोर्ट होगा। और एक ही कोर्ट में एरिया है, जुडिक्शन वाइज एरिया है, इस एरिया में हुआ चाहे स्टेट गवर्नमेंट का केस हो या सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर का केस हो, इसी कोर्ट में जाएगा। एरिया है कोर्ट का, जुडिक्शन में एरिया का जुडिक्शन है, लेकिन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें कोई जुडिक्शन नहीं है, इंटीग्रेटेड है, एक ही है दोस्तों।
दूसरा कहता है दोस्तों कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, देयर विल नॉट बी एनी इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फ्रॉम द जुडिशियरी। उसके लिए कई प्रोविजन किया गया है दोस्तों। एक तो है कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, यदि हाई कोर्ट और उसके नीचे का है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पेमेंट लेंगे, यदि सुप्रीम कोर्ट है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट लेंगे, और उनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है सीजीआई, यदि सुप्रीम कोर्ट तो सीजीआई के हाथ में रहेगा, हाई कोर्ट हो तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट के हाथ में रहेगा। इस तरह से है दोस्तों। और उनका ट्रांसफ़र वगैरह भी उन्हीं के हाथ में है। उनका अपने आप में चीफ जस्टिस का सिलेक्शन है तो 5 मेंबर का सुप्रीम कोर्ट का जज सेलेक्ट करते हैं। तो किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस एग्जीक्यूटिव का नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोला है। होने से क्या होगा? होने से ये होगा कि बड़े बड़े घोटाले करेंगे, हमें भी चारा घोटाला, उससे बड़ा भी घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, और हम जज को बोल देंगे भैया यदि आप हमें कन्विक्ट किए तो आप कल से आपको हटा दूंगा, तो ये तो इंटरफेरेंस हो गया। तो वो इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, तो एग्जीक्यूटिव उनका कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उनको इंडिपेंडेंट रखा गया है। 5वां स्पेशल फीचर है दोस्तों भारतीय संविधान का कि फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो इसको हम दोस्तों पार्ट 3 में पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बता चुके